اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں گیس لیکیج کے باعث شادی کے گھر میں صف ماتم، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد موت کی وادی میں چلے گئے، 11 زخمی ہوئے۔ دھماکے سے 3 مکان زمین بوس، اعتراف کئی گھر بھی متاثر ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ فورینزک اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا جانی نقصان پر اظہار افسوس، مالی نقصان کا ہر ممکن ازالہ کرنے کی ہدایت۔ کل خوشیوں کی بارات، آج غموں کے ڈیرے۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں گیس لیکیج کے باعث شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ آنکھوں میں خواب سجائے جو دلہن رات اس گھر میں آئی، آج موت کی وادی میں چلی گئی۔ دلہا اور اس کی والدہ سمیت 8 زندگیوں کے چراغ بھی گل ہو گئے۔ بڑا زوردار دھماکہ تھا، پوری آبادی جو ہے ہماری اس میں سونامی کے بادل جو تھے وہ اٹھ رہے تھے، لوگ جو تھے جو چلانا شروع ہو گئے، وہ زور سے جیسے بم، بڑا بم پھٹتا ہے۔ بس ہم تو آواز سن کے جلدی سے اٹھے، اپنے بچوں کو دیکھا، ان کو دیکھا، بہت دکھ لگا ہمیں۔ ایک بڑے دھماکے سے اٹھے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالا ہے، اور سنبھالنے کے بعد جب ہم موقع پر پہنچے ہیں، سب سے پہلے میں نے کال کی 15 پہ کال کی ہے 7:19 پہ۔ بڑھاس کی آواز آئی، جیسے میں نے کھڑکی کھولی ہے تو کھڑکی میں ہمارے یہاں پہ کچرا پڑا ہوتا ہے، تو وہ کچرا نا سڑک سے بھی یوں تھوڑا اچھلا ہے، تو تھوڑی دیر بعد ٹیکسی 15 کے آ گئے ہیں بہت سارے۔ امدادی ٹیموں کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ گھر میں ہوا کے اخراج کی جگہ نہ ہونے کے باعث نقصان زیادہ ہوا۔ شادی والے گھر کے ساتھ آس پاس کے 3 مکانات بھی مکمل تباہ ہو گئے۔ جس طرح کا پاورفل یہ انسیڈنٹ تھا، وہ اس طرح سے گیس لیکیج میں ہی ہوتا ہے، اور جس طرح کی یہ لوکیشن ہے وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ گیس کی وینٹیلیشن کا کوئی ایسا نہیں تھا انتظام، کنجسٹڈ ایریا تھا، گیس جو ہے آہستہ آہستہ ایکومولیٹ ہوتی گئی رات کو، اور جب صبح کے ٹائم پہ دیا سلائی جلائی گئی تو اس سے جو ہے وہ ایک ایکسپلوژن ہوا۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر نے جائے حادثہ کا دورہ کیا، متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اس پوری کمیونٹی کے لیے جو بھی ہم کمپنسیشن دے سکتے ہیں وہ کم ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ جو باقی گھر رہ گئے ان کو بھی چیک کر لیں، کہیں پہ اگر دراڑیں ہیں تو ہم بالکل الاؤ نہیں کریں گے وہاں پہ کوئی رہے، اگر ہمیں فل فور ان کو کہیں پہ شفٹ بھی کرنا پڑے تو اس کا بھی پورا انتظام کریں گے۔ پم سے دلہا دلہن سمیت 3 افراد اور CD اسپتال سے دلہا کی والدہ اور ہمشیرہ کی میتیں گھر پہنچائی گئیں تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مرنے والوں کی تدفین H8 قبرستان میں کر دی گئی۔ اندھوناک واقعے پر دلہا کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال، رو رو کر ہوا برا حال۔ بہن اپنے بھائی اور بھابھی کو یاد کر کے روتی رہی، کہا رات خوشی خوشی بارات لائے تھے، گھر کے سربراہ کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ پنجاب میں گزشتہ 3 سال میں گیس لیکیج اور سلنڈر دھماکوں کے 488 واقعات ہوئے، 25 قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ اسلام آباد سے دیکھیے شہزاد علی کی رپورٹ۔ زائد المیعاد یا غیر معیاری سلنڈرز اور غیر محفوظ فلنگ دھماکوں کے جان لیوا حادثات کی بڑی وجہ۔ شہر اقتدار میں 2026 کا پہلا ہی افسوسناک واقعہ 8 زندگیاں نگل گیا۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد سما کی ٹیم نے وفاقی دارالحکومت کا سروے کیا تو مختلف علاقوں میں ہوٹل، کیفے اور چائے خانوں کے باہر حفاظتی اقدامات کے بغیر بڑے بڑے سلنڈرز کی بہتات اور کھلے عام ری فلنگ ہوتی نظر آئی، جو کسی بھی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہے۔ تشویشناک صورتحال سے شہری خود بھی پریشان ہیں۔ ریفلنگز ہوتی ہیں اور آپ چلے جائیں گڈر والی سائٹ پہ، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے ریفلنگ بالکل اوپنلی ہو رہی ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ اتفاقاً میں نے آج ہی منگوایا تو وہ کافی اوپر سے زنگ آلود ٹائپ کا تھا، تو میں نے اس سے یہی کویسچن کیا اللہ نہ کرے اس سے کوئی حادثہ ہو جائے، تو وہ کہتے کہ نہیں جی کمپنی تو وہاں سے ٹیسٹ کر کے دوبارہ فل کر کے بیچتی ہے۔ کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو جگہ جگہ پہ سلنڈرز ہوتے ہیں ہوٹلوں پہ، لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہوتا، کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہوتے ان کی طرف سے۔ صدر LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے سارا ملبہ حکومت پر ڈال دیا۔ پاکستان میں روزانہ غیر معیاری سلنڈر کے 2 بلاسٹ ہوتے ہیں۔ دوسری بات غیر معیاری بازر جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں میں گھوم رہے ہیں۔ ملتان کا واقعہ ہوا ہے، DG خان کا واقعہ ہوا ہے، قانون شادی نہیں ہے، جو ہے وہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ اوگرا نے غیر معیاری اور غیر محفوظ سلنڈرز یا باؤزرز کے معاملے پر قانون سخت کرنے کی تجویز دے رکھی ہے، مگر وہ ابھی تک روایتی سرکاری سست روی کا شکار ہے۔ کیمرمین علی رضا کے ساتھ شہزاد علی، سما، اسلام آباد۔ کراچی میں ڈاکو ہوئے بے لگام، ایک اور نوجوان سے جینے کا حق چھین لیا۔ ملزمان نے سوراب گوٹ لاسی گوٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو گولیاں مار دیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوجوان اجمل شدید زخمی ہوا، دوران علاج اسپتال میں دم توڑ گیا۔
कराची में ट्रेलर ने एक और जान ले ली। बल्दिया सवात कॉलोनी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, मरने वाले की शनाख्त नहीं हो सकी। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। और लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसा के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। जौहर टाउन में शौकत खानम चौक के करीब तेज़ रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। 19 साल का उमान उबैद मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि कार ड्राइवर फरार हो गया। काना के इलाके हलोकी में सड़क पार करती मुअम्मर खातून तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ गई। 70 साल की शाहीन खावर अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई हैं। शालीमार में घास मंडी स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल बेकाबू होकर रिक्शा से जा टकराई, जिससे मोटरसाइकिल सवार पुलिस कांस्टेबल अवैस नामी ज़ख्मी हो गया। तो आपको बताएं कि लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसा के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ है। पीटीआई वालों ने कराची के बागी जिना को मैदान जंग बना दिया। पुलिस पर पथराव किया, मीडिया के साथ बदतमीजी और वैन्स की तोड़ फोड़ की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी रात गए जलसगाह पहुँचे, कारकुनान से मुख्तसर खिताब किया और चले गए। पीटीआई कारकुनान की गुरु मंदिर के करीब भी पुलिस से झड़पें। शहर के कई इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा, इससे शहरी परेशान रहे। कुनान पहुंचे तो थे जलसे में शिरकत के लिए, मगर पुलिस पर चढ़ दौड़े। सहाफियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, निजी टीवी चैनल की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। हालात कशीदा होने पर पुलिस ने दिखाया एक्शन। शेलिंग और लाठीचार्ज शुरू हुआ। मुतादिद शरपसंदों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। कारकुनान ने सिक्योरिटी के लिए लगाई गई रुकावटें भी हटाने की कोशिश की। गुरु मंदिर के करीब भी मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें होती रहीं। कई इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम और शहरी परेशान रहे। कैमरा टीम के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का एक बार फिर मुल्क में नए सूबों के क़याम पर जोर। कामुकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि तमाम जमातें अपना दिल बड़ा करें, मसाइल के हल के लिए सूबे बनाएं। IPP चाहती है सूबों का नाम तब्दील ना किया जाए, जिसकी अक्सरियत हो वो अपने वुज़राए आला बना ले। हमने इस मुल्क में एक तहरीक शुरू करनी है जिसमें हमने इस मुल्क में ज़्यादा सूबे होने चाहिए। मसाइल का हल ये है कि आपके सूबे ज़्यादा हो, आपकी तरक्की ज़्यादा हो और लोग आपस में मिल के इस सूबे के अवाम जो है वो फैसला करें। सूबों के नाम जो है वो बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे। हम जनूबी पंजाब के हक में हैं, हम शुमाली पंजाब के हक में हैं, सेंट्रल पंजाब के हक में हैं। हम इसी तरह जनूबी सिंध चाहते हैं, एक शुमाली सिंध चाहते हैं, एक सेंट्रल सिंध चाहते हैं। बलोचिस्तान का नाम बलोचिस्तान ही रखना चाहते हैं। 1100 किलोमीटर के बाद आपका एक सूबा हो, ये क्या मसाइल का हल है? आज मुझे MQM की हमायत हासिल हुई, बाकी दोस्त हैं वो भी बहुत सारे दोस्त इसमें हमारी हमायत शामिल कर रहे हैं। लेकिन मैं सारी जमातों से कहना चाहता हूँ और ख़ास तौर पे अपनी हुक्मरान जमातों से कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो बराए मेहरबानी आप एक वज़ीर आला की जगह अपने 3 वज़ीर आला बना लें। तो हमें ये तो इतराज़ नहीं है, हम तो नहीं कहते कि आप सारे लोगों में बांट दें। भाई अपने कोई और वज़ीर आला बना लो, पर लोगों के मसाइल तो हल कर लो। लोगों के मसाइल हल करने के लिए हमें अपनी तंग नजरी से बाहर निकलना पड़ेगा, पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, अपनी हुकूमतों के जोम से बाहर निकलना पड़ेगा। सारा कुछ मेरे पास ही आ जाए, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सारी जमातों की खिदमत में ये दरखास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने दिल को बड़ा करें, नए सूबे बनाएं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने वज़ीर आज़म से टैक्स की शरह कम करने और किसान से गंदम 4000 रुपए फी मन खरीदने की दरख्वास्त कर दी। कामुकी और गुजरावाला को मोटरवे से मुंसलिक करने का ऐलान। लाहौर सियालकोट सड़क को 6 लेन में बदलने की नवीद भी सुनाई। वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पे फौरी तौर पे गंदम की जो कीमत है वो कम से कम 4000 रुपये मुकर्रर की जाए और लोगों की गंदम हुकूमत खरीदे ताकि किसान को उसका मुआवजा मिल सके और वो जो दरमियान में मिडल मैन है उसके हाथों जो हमारा नुकसान होता है छोटे जमींदार का खास तौर पे वो ना हो सके। हमारी वज़ीर आज़म साहब से हमारी पार्टी की तरफ से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपनी टैक्स की शरह कम करें ताकि लोग जो है वो अपना कारोबार बढ़ा सके।
कामों की जो है वो इंशाल्लाह हम इसको कनेक्ट करेंगे मोटरवे के साथ। गुजरांवाला को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं मोटरवे के साथ। जो लाहौर सियालकोट की सड़क है इसको भी 4 रोइया कर से उठा के 6 रोइया कर दिया। ये 6 लेन की सड़क लाहौर से लेके इंशाल्लाह अब पिंडी तक जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा होगा और इंशाल्लाह ताला मैं वजीर आजम साहब से कहूँगा हमारे शहर के लिए जो है वो यहाँ पे आके इसका इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह ताला। पंजाब के मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में हैं। नारोवाल में धुंध ने हर चीज़ ही धुंधला दी है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, हद निगाह मुतासर होने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी धुंध छाई हुई है। जिला बेनज़ीराबाद की तहसील सकरंड में भी शदीद धुंध है। कौमी शाहराह पर हद निगाह सिफर रह गई। समा के नुमाइंदे इमरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी इमरान बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील सकरंड भी इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है, जिसकी वजह से धुंध में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। रात गए तक खुलने वाली मार्केटें भी सरे शाम बंद होने लगी, जबकि शहरी जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई है। दूसरी जानिब कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मोटरवे पुलिस ने ये ऐलान करते हुए कहा है कि रात के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और मुनासिब स्पीड के साथ फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूरी करें। सेवन शरीफ में भी धुंध के डेरे हैं। इंडस हाईवे पर हद निगाह 10 मीटर से भी कम रह गई है। कुर्बान अली भट्टी से सूरत हाल जान लेते हैं। जी कुर्बान। हाँ जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह सेवन शरीफ में भी जो है धुंध का राज जो है बरकरार है। धुंध बढ़ने की बायस जो है हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। इसके साथ साथ सर्दी में भी जो है मुसलसल इजाफा हो गया है। इस वक्त भी रात के इस पहर भी लोग जो है सड़कों पर जो बैठे हुए हैं वो आग पर गरमाइश हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए शहर के अंदर तो शहर के कारोबारी मराकज़ बंद हो चुके हैं। इसके साथ साथ इंडस हाईवे पर अगर बात की जाए तो धुंध इंतहाई बढ़ चुकी है। मोटरवे पुलिस से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि सेवन से पेटारो जामशोर की तरफ जो धुंध की सूरत हाल है उसमें जो है हद निगाह तकरीबन 5 से 10 मीटर तक रह चुकी है, जिसकी वजह से तमाम जो गाड़ियां सफ़र कर रही हैं उनको खुसूसी तौर पर एहतियात करने के लिए फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की जो हिदायतें हैं वो की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। पेशावर में सर्दी बढ़ते ही नमक मंडी की रौनकें भी बढ़ गई हैं। शहरी रिवायती खानों से लुत्फानंदोज होने लगे। नमक मंडी में इस वक्त क्या समा है, इरफान मूसा ज़ई बताएंगे। पेशावर में टटकती सर्दी के दौरान शहरियों ने रुख कर लिया है रिवायती काबों के लिए मशहूर नमक मंडी का। आइए जानते हैं कि इस सर्द मौसम में लोग किन किन रिवायती काबों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हम लास्ट 2 दिन पहले भी इधर आए थे तो आज वापस आए हैं। इनका जो गोश्त है बहुत बेहतरीन गोश्त है। पूरे पाकिस्तान में आपको ऐसा गोश्त किधर भी नहीं मिलेगा। लोग इस्लामाबाद से आए हैं पेशावर में और इनका बारबेक्यू बहुत टेस्टी है, दुम्बे का खास करके। जितने भी देखने वाले लोग हैं ज़रूर इसको ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा ही लजीज और मज़ेदार है। वो अचारसदा से हैं ठंडी मौसम में, और ये मेरा कज़न है, मैं उम्र से आया हूँ तो उसने मुझे ट्रीट दिया है। अच्छा टेस्ट भी है इसका और बहुत ज़्यादा है इसका। हम लोग जी कराची से आए हैं और हमने काफ़ी सुना हुआ था नमक मंडी का, दैट इज़ वाई वी आर हियर। और माय सन इज़ फ्रॉम जीकी, इसको मैं ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी से लेके आया हूँ टू हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ नमक मंडी एंड इट्स वंडरफुल। नमक मंडी वंडरफुल। शहरियों का कहना है कि नमक मंडी के रिवायती खाने जायके और तवानाई का बेहतरीन जरिया है। पंजाब भर में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आज से खुल जाएंगी। छुट्टियों में इजाफा नहीं होगा। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की वजाहत। मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा सिर्फ स्कूल्स में किया गया है। छुट्टियों में इजाफे का इतलाक कॉलेजेस और जामियात पर नहीं होगा। महीनों या बरसों की बात नहीं, दिहाइयां बीत गई। कराची में फराहमी आब का दरीना मंसूबा K4 मुकम्मल ना हो सका। ताखीर से लागत कई गुना बढ़ चुकी। मंसूबा कब शुरू हुआ और मौजूदा सूरत हाल क्या है, हमें बता रहे हैं मोनिस अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। समंदर किनारे पानी को तरसता कराची।
ना सिंध हुकूमत को फिक्र, ना वफाक को परवाह। शहर कायद को यौमिया पानी की जरूरत 1200 MGD, मगर फरहमी सिर्फ 600 MGD है। पानी की कमी को दूर करने के लिए K4 नामी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस पर पहला इजलास 2002 में हुआ, तहम इसकी फिजिबिलिटी 2007 में मंजूर हुई, जबकि इफ्तिदा 2016 में साबिक वजीर आला कायम अली शाह ने किया। ठट्टा कलरी झील से 120 किलोमीटर कैनाल के 650 MGD पानी फराहमी के मंसूबे को 2 मराहिल में मुकम्मल होना था। प्रोजेक्ट के पहले फेज की लागत का तखमीना 25.5 अरब रुपए था, जिससे शहर को 260 MGD और दूसरे फेज से 390 मिलियन गैलन पानी यौमिया फराहम करने का मंसूबा था। बात तो थोड़ी सी संजीदा नौयत की है ये कि अगर K4 का मंसूबा बन जाता तो वाकई में यहाँ दूध की नहर तो नहीं बहती, लेकिन पानी की नहर ज़रूर बह रही होती है, जिससे कराची के अवाम मुस्तफ़ीद होते। K4 का मंसूबा अगर मुकम्मल हो जाता तो बर वक्त शहर कराची के लोगों को पानी मैसर आ जाता। इस वक्त देख रहे हैं कि हाँ, कराची में सबसे बड़ा मसला अगर देखा जाए तो वो पानी का ही है। लोगों को टैंकर्स में पानी मिल रहा है और लाइन में पानी नहीं आ रहा। वक्त गुजरता रहा और तारीख पर तारीख आती रही। पहले जुलाई 2019, फिर अक्टूबर 2023, उसके बाद अक्टूबर 2024 और अब 2026 में मंसूबे का पहला फेज मुकम्मल होने की डेडलाइन दी गई है। ताहम 2018 से 2024 के दौरान कई बार मंसूबे के डिजाइन में नकाइस के सबब अब इसकी लागत बढ़कर 125 अरब रुपए से भी तजावुज कर चुकी है। K4 भी यही है कि हम सोचते हैं कि K4 का सारा स्ट्रक्चर जो वफाक ने पैसे दे दिए और वो इतने अरब रुपए दे दिए गए, इतने अरब रुपए दे दिए गए, लेकिन जिस तरह की रिलीज आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आने वाले जो 25 साल में भी कंप्लीट होगा, जिस तरह का इसके ऊपर काम चल रहा है और जिस रवि से काम चल रहा है। K4 की वजह से जो है ना पूरे कराची में जो है ना पानी का मसला इस वक्त, जैसे आपको पता है K3 नेमतुल्लाह खान ने जब ख़त्म किया था उसके बाद से कराची में कोई पानी का एक बूंद का भी ऐसा मंसूबा नहीं है जिससे कराची में पानी का इजाफा। और आबादी आपके सामने है कि 15-20 सालों में आबादी कितनी बढ़ चुकी है कराची की। माहिरीन का कहना है वफाक और सूबाई हुकूमतों की चपकलिश भी मंसूबे की ताखीर की बड़ी वजह है और इसी वजह से 2019 में वफाकी हुकूमत ने मंसूबे को अपनी निगरानी में लेकर वापडा के हवाले किया था। मंसूबे के पहले फेज का 63% काम मुकम्मल हो चुका। रवा माली साल तवक्का थी कि प्रोजेक्ट के लिए बजट में वफाक की जानिब से कम 40 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जाएगी, मगर इसके बरखिलाफ महज 3.5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। जबकि सिंध हुकूमत ने 77 अरब की लागत से K4 ऑगमेंटेशन का काम नवंबर 2025 में शुरू किया, जिसकी तकमील की डेडलाइन अब तक नहीं दी गई। मोनिस अहमद, समा, कराची। कराची की उखड़ी सड़कें, उड़ती धूल शहरियों के लिए सफर वबाल जान बन गया। नुमाइंदा समा हामिदुर रहमान ने मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों का जायजा लिया है। उन्होंने क्या देखा आपको दिखाते हैं। कराची शहर की टूटी सड़कें शहरियों के लिए मुसलसल अजियत का बायस बन चुकी हैं, जहां रोज़मर्रा सफ़र एक इम्तिहान बन गया है। शहर कायद की खस्ता हाल सड़कें न सिर्फ ट्रैफिक मसाइल को जन्म दे रही हैं, बल्कि हादसात का सबब भी बनती जा रही हैं। आज हम पूरा दिन इन सड़कों पर मौजूद रहेंगे और आपको दिखाएंगे वो टूटी सड़कें जो शहरियों के लिए एक इम्तिहान बन चुकी हैं। रात की रात बना के चले गए थे, तैयार डामर लेके आए थे, फिर बारिश में पूरी सड़क उतर गई। 2 साल के बाद इसका कोई पुरसान हाल नहीं है, खड्डे पड़े हुए हैं, मिट्टी धूल उड़ रही है। इन्होंने अभी रोड डाला था, तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ इस रोड को। इससे पहले जो रोड था वो कदरे बेहतर था, वो तकरीबन अर्सा चला है। अब जो रोड डाला है इन्होंने पता नहीं कैसा डाला है, जो साल के अंदर ही जो है वो टूट गया है। जहांगीर रोड ज़िला शर्की की वो बदकिस्मत सड़क है जो 3 बार तामीर की गई, लेकिन फिर टूट फूट का शिकार हो गई। तो तकरीबन 1.5 साल से चला रहे हैं, 1.5 साल से ऊपर ही हो गया। मैं पहले कार भी चलाता था, तब भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। अब तो डस्ट इतनी हो गई है, हमारे गले सही होकर नहीं दे रहे। ये रोड जो है ना किसी काम के नहीं रहे, इनको कम से कम चाहिए कि रोड को तो सही करें। बड़ा बुरा हाल है इन रोडों का। इस वक्त हम आपको दिन के मनाजिर कराची की सड़कों के बता रहे हैं। अब हम आपको रात के मनाजिर दिखाते हैं कि रात में शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़िला जुनूबी का हाल भी आज शहर के जो दीगर अजला हैं उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी देखें सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इसी सड़क से जो है वो आम अफराद जो है इस सड़क पे सफ़र करते हैं, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे इसी रास्ते को लेते और शहर के दूसरे हिस्सों की तरफ निकल जाते हैं। तकरीबन 2 साल से तो हम देख रहे हैं रोज़ाना बाइकों की जंपें टूटती हैं। इसकी वजह से हादसा भी होते हैं, कोई गिर जाता है, बारिश होती है
तब मुसीबत हो जाती है। कराची की 100 से ज़ायद सड़कों की तामीर के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं, लेकिन शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन कहते हैं सड़कों की तामीर के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद की ज़रूरत होगी। कैमरा टीम के हमरा हामिद और रहमान, समा, कराची। कराची में एक तो सड़कें खस्ताहाल रही, सही कसर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात ने पूरी कर दी। रोशनियों के शहर के मकीन इन दिनों किस कर्ब से गुजर रहे हैं, बता रहे हैं नवीद कमाल अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में अक्सर सड़कों का हाल बुरा है। टूटी फूटी सड़कें, ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक जैम का बायस बन रहा है। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। ट्रैफिक जैम शहर का संगीन मसला बन चुका है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सड़कों की जो है ना कोई हाल नहीं है कराची में, हर जगह पे जो है ना ख़राब है, खड्डे हैं, वो पानी बह रहे हैं, गटर का पानी बह रहे हैं, कहीं पर गटर के ढक्कने नहीं है, ट्रैफिक में भी फंसे रहते हैं, वो भी हर जगह पे यही मसला है। रोडों का हाल देखें, हर जगह खड्डे खड्डे खड्डे, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है, तो वसूली पे ही चलान पे तवज्जो है। गड्ढे की वजह से ज़्यादातर बाइक में तो परेशानी होता है, आए दिन जो है ना बाइक में पैसा लगाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। रश बहुत हुआ हुआ है, रश पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। जहाँ 5 मिनट का रास्ता है वहाँ घंटों घंटों खड़ा होना पड़ता है। यही रीज़न है सड़कें टूटी, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होता है। मॉल्स बने हुए हैं, उनकी पार्किंग, कहीं रोड चौड़ा है कहीं पतला है, मतलब मिस मैनेजमेंट है। टूटे फूटे रोड हैं, ज़रा सा इधर देख लिया बाइक तो गई खड्डे में गम। सिर्फ टूटी फूटी सड़कें या ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक जैम का सबब नहीं बन रहा। तजावुज़ात, गैर कानूनी पार्किंग और ख़राब सिग्नल्स भी ट्रैफिक जैम का सबब हैं। शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करते हैं। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ नवीद कमाल, समा, कराची।